Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing your revision work. Okay, students, today we are going to read chapter 5, Dorothy's Adventure. I know, students, that you like to read adventure books. Yes, I am right. Okay, students, have you read any of these books? Harry Potter, The Hobbit, Charlotte's Web, The Adventure of Tintin, Diary of a Wimpy Kid. Okay, think about it. Have you ever read these books? Let's move to the story. This is an adventurous story and definitely you will like to read. This story is taken from the book The Wonderful Wizard of Oz. Students, the author has taken this story from the book The Wonderful Wizard of Oz. Oz is a place. Wizard, who is wizard? Magician, जादूगर जिसको हम बोलते हैं. A young girl named Dorothy. Here you can see a girl. Her name is Dorothy. Is on her way to Emerald City to meet the Wizard of Oz. तो Dorothy, she started her journey. वो कहाँ पे जाती है? एमरल्ड सिटी. किसको मिलने के लिए? ऑज के विज़र्ड को मिलने. रीड अबाउट हर एडवेंचर्स ऑन द जर्नी. अब जो भी एडवेंचर्स उसकी जर्नी में होते हैं, जो भी जब वो विज़र्ड ऑज के विज़र्ड के पास जाती है तो रास्ते में क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं उसके साथ. लेट्स सी. I know that you are very excited that what will happen the next. After a few hours, the road became rough. As you can see, as she started her journey, after few hours, the road became rough. You can see the rough road, and the walking grew difficult. It's very difficult to walk on the road because road is very rough. The scarecrow. Here a picture of a scarecrow. You can see. वैसे scarecrow आपने पहले सुना है कभी? फार्म्स में लोग scarecrow बनाते हैं ताकि बर्ड्स ना आए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने, क्रॉप्स को ख़राब करने, बर्ड्स ना आए. तो यहाँ पे भी जो हमारी स्टोरी है उसमें एक scarecrow है. Let's see the definition. Scarecrow. Meaning of the scarecrow is a human like object set up to scare birds away from fields. The scarecrow often stumbled over the bricks. Stumbled means when he was walking on the road, he stumbled. Stumbled means tripped or fell. कि वो बार बार गिर रहा था because उसको हैबिट नहीं थी ऐसे रोड्स पे चलने की. Over the bricks that were very uneven. Uneven means कि देखो ये ब्रिक्स बीच बीच में से निकली हुई हैं. द रोड इज़ वेरी रफ. समटाइम्स दे वर ब्रोकन और मिसिंग ऑल टुगेदर. कहीं कहीं पे जो ब्रिक्स थी वो मिसिंग थी. लिविंग होल्स. और वहाँ पे क्या हो गए थे? होल्स हो गए थे. टोटो जम्प्ड अक्रॉस देम. टोटो, हु इज़ टोटो? सी हेयर. सो स्टूडेंट्स, टोटो इज़ अ डॉग. हु इज़ टोटो? टोटो इज़ अ डॉग. टोटो जम्प्ड अक्रॉस देम. टोटो क्या करता है? ही जम्प्ड अक्रॉस देम एंड डोरथी वॉकड अराउंड देम. और जो डोरथी है वो उनके अराउंड वॉक कर रही है कि डोरथी टेक्स केयर ऑफ स्केयरक्रो. एज द स्केयरक्रो हैड नो ब्रेन्स. एज यू सी, स्केयरक्रो हैड नो ब्रेन बिकॉज स्केयरक्रो इज फिल्ड विथ स्ट्रॉ. एज यू कैन सी. He walked straight ahead. He was walking straight. वो सीधा सीधा चल रहा था. He was not able to judge how is the road and stepped into the holes and fell hard. और वो बड़ी बुरी तरह से गिरता है जब वो इस रोड पर से वॉक करता है because he don't know how to walk. It never hurt him. उसको चोट नहीं लगती है because उसकी तो बॉडी आर्टिफिशियल होती है ना. And Dorothy picked him up and set him upon his feet again. Dorothy उसको पकड़ती है जब वो बार बार गिरता है. Dorothy picked him
एंड सेट हिम अपॉन हिज फीट अगेन, और दोबारा से उसको वो फिर खड़ा करती है. At noon, they sat down by the roadside near a little brook. Brook is small stream. छोटा पानी का स्ट्रीम होता है, वाटर स्ट्रीम होता है, जहाँ से पानी आता है, झरना जिसको आप बोलते हो, छोटा, लेकिन इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रीम. तो वो दोपहर को क्या करते हैं, एट नून वो रोड के साइड में बैठ जाते हैं एक स्ट्रीम के पास. एंड डोरथी ओपन्ड हर बास्केट एंड गॉट आउट सम ब्रेड. व्हाट डिड डोरथी डू? शी ओपन्ड हर बास्केट. वो अपनी बास्केट ओपन करती है. सी देयर इज अ बास्केट इन हर हैंड एंड गॉट आउट सम ब्रेड एंड शी हैज़ टेकन आउट सम ब्रेड. शी ऑफर्ड अ पीस टू स्केयर क्रो बट ही रिफ्यूज्ड. उसने क्या किया, अपनी बास्केट में से ब्रेड निकाले और स्केयर क्रो को ऑफ़र किया, बट स्केयर क्रो डिनाइड. स्केयर क्रो ने मना कर दिया दैट he does not want to eat because you know the reason, कि वो तो खा ही नहीं सकता है. हाउ कैन ही ईट? क्योंकि उसकी बॉडी तो आर्टिफिशियल है और उसमें तो स्ट्रॉ फिल है. देन हाउ कैन ही ईट? तो स्केयरक्रो का क्या आंसर होता है? आई एम नेवर हंग्री. ही सेड कि मुझे कभी भी भूख नहीं लगती है. एंड इट इज़ अ लकी थिंग, और ये मेरे लिए बहुत लकी चीज़ है कि मैं कभी भूखा नहीं होता हूँ. माई माउथ इज़ ओनली पेंटेड, कि मेरा माउथ जो है वो पेंटेड है. एंड इफ़ आई कट अ होल इन इट टू ईट, कि अगर मैंने इसमें अपने माउथ में होल किया खाने के लिए, what will happen? The straw and I am stuffed with will come out. कि जिस स्टफ से मैं फिल हूँ, स्ट्रॉ से मैं फिल हूँ, वो सारी स्ट्रॉ क्या होगी, बाहर आ जाएगी अगर मैंने अपने माउथ में होल किया. That will spoil the shape of my head. और इससे क्या होगा, मेरी हेड की जो शेप है, it will spoil, ये खराब हो जाएगी. Dorothy saw that this was true, so she nodded and went on eating her bread. Now, Dorothy saw that the scarecrow is telling truth, so she moved her head up and went on eating her bread. When she had finished her lunch, the scarecrow said, "Tell me something about yourself and the country you come from." Now, scarecrow is asking Dorothy कि आप कौन सी कंट्री से आए हो, कुछ मुझे आप अपने बारे में बताओ. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कैंसस. कैंसस इज़ अ कंट्री जहाँ से डोरथी आई है. एंड हाउ अ साइक्लोन हैड कैरिड हर टू द स्ट्रेंज लैंड ऑफ ओज, कि किस तरह से एक विंड स्टॉर्म वहाँ पे आया और उस तूफान में वो कहाँ पे आ गई, लैंड ऑफ ओज. ओज इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. तो वो कैंसस से कहाँ पे पहुँच गई, वेयर शी रीच्ड, ओज. द स्केयरक्रो listened carefully and said, I cannot understand why you should wish to leave this beautiful country and go back to the place you call Kansas. स्केयरक्रो ने बड़ी ध्यान से उसको सुना और कहा कि मुझे नहीं समझ में आता, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, कि आप इतनी सुंदर कंट्री को यानी ओज को आप क्यों छोड़ना चाहते हो. वाई डू यू लीव दिस ब्यूटिफुल कंट्री एंड गो बैक टू द प्लेस यू कॉल कैंसस, कि आप अपनी होम कंट्री में वापस क्यों जाना चाहते हो. दैट इज़ बिकॉज यू हैव नो ब्रेन्स, आंसर द गर्ल. अब गर्ल ने क्या कहा, डोरथी ने क्या कहा कि आपको ये समझने के लिए ब्रेन तो है नहीं कि मैं अपनी होम कंट्री क्यों जाना चाहती हूँ. तो आपके पास अगर ब्रेन होता तो आप मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझ सकते. इफ़ यू हैड ब्रेन देन यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, इमोशंस. नो प्लेस कैन एवर बी ब्यूटिफुल एज होम. कैंसस इज़ माई होम. कोई भी प्लेस अपने घर से सुंदर नहीं हो सकता, और जो कैंसस है वो मेरा होम है, होम टाउन है. सो आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई टाउन. द स्केयरक्रो साइड. साइड मीन्स ऐसे करना, दैट इज कॉल्ड साइड. By evening, they came to a great forest where the trees grew so big and close together that their branches met over the road. इवनिंग जब वो चल रहे थे, चलते चलते इवनिंग हो गई, शाम हो गई, और वो एक ग्रेट फॉरेस्ट में यानी एक घने जंगल में पहुंच गए. एज यू कैन सी, where the trees grew so big and close together that their branches met over the road.
कि वो इतने ज़्यादा बड़े थे ट्रीज़ कि उनकी ब्रांचेस जो थी वो रोड को टच कर रही थी. It was almost dark under the trees for the branches shut out the daylight. कि वो इतना ज़्यादा डार्क फॉरेस्ट था, इतना घना जंगल था कि जो ब्रांचेस थी वो डे लाइट को रोक रही थी, कि जो डे लाइट थी वो सिर्फ ट्रीज तक ही आ रही थी, बाकी फॉरेस्ट में क्या था, डार्क, अंधेरा. The travelers did not stop and went on into the forest. तो ट्रैवलर्स कौन थे, डॉरथी, स्केयर क्रो एंड टोटो. उन्होंने स्टॉप नहीं की अपनी जर्नी. दे डिडंट स्टॉप देयर जर्नी, और वो फॉरेस्ट के अंदर चले गए. दे वेंट ऑन इनटू द फॉरेस्ट. इफ दिस रोड गोज इन इट मस्ट कम आउट, सेड द स्केयर क्रो. व्हाट द स्केयर क्रो सेड, कि अगर ये रोड अंदर जाता है तो डेफिनेटली इट मस्ट कम आउट, कि इसको बाहर भी जाना चाहिए, कि अगर अंदर जाने का रास्ता है तो बाहर जाने का रास्ता भी डेफिनेटली होगा. And as the Emerald City is at other end of the road, we must go wherever it takes us. कि अगर Emerald City जो है वो रोड के दूसरी साइड पे होगी तो हमें ज़रूर जाना चाहिए. And follow this road because definitely it takes us outside. After an hour or so, the light faded away and they found themselves stumbling along in the darkness. When they went to the dark forest, after half an hour, the light faded away. It is getting dark, so light faded away and they found themselves stumbling along in the darkness. It means, stumbling means when you are walking or running and almost fall over, कि जब आप गिर जाते हो, कई बार आपको नज़र नहीं आता है कि मतलब अंधेरे में क्या है आपके सामने. When you fell down in dark, Dorothy could not see at all, but Toto could. Dog was able to see, but Dorothy could not see at all because some dogs see very well in the dark. क्योंकि कुछ डॉग्स को अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है. They are able to see in the dark. The scarecrow said that he would see as well in the dark as day by day. Scarecrow ने भी कहा कि वो भी देख सकता है डार्क में, अंधेरे में. सो डॉरथी टुक होल्ड ऑफ हिज आर्म, तो इसलिए डॉरथी ने क्या किया, स्केयर क्रो की आर्म को पकड़ लिया. एंड मैनेज टू वॉक अलॉन्ग फेयरली वेल, और मैनेज किया अंधेरे में चलने के लिए, क्योंकि डॉरथी को तो नज़र नहीं आ रहा था अंधेरे में. शी वॉज नॉट एबल टू सी इन द डार्क, बट शी होल्ड द स्केयर क्रोज आर्म. आफ्टर अ वाइल द स्केयर क्रो स्टॉप्ड. कुछ देर बाद क्या होता है, स्केयर क्रो वहीं रुक जाता है. What he said, I see a little cottage. उसको वहाँ पे फॉरेस्ट में एक छोटी सी हट नज़र आती है, कॉटेज नज़र आता है. He said, built of logs and branches, shall we go there? Scarecrow कहता है कि वहाँ पे logs क्या होता है, जो लकड़ी की मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं ना, मोटी लकड़ी जिनसे हट बनती है, और branches, कि वहाँ पर मुझे कॉटेज नज़र आ रहा है. I can see a cottage over there and it is made of logs and branches. Shall we go there? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? Yes, indeed, answered the girl. Dorothy ने कहा कि yes, really, we have to go there. I am very tired. I am feeling very tired. So the scarecrow led her through the trees until they reached the cottage. तो scarecrow रास्ता दिखाता है उनको, वे शो करता है उनको, और वो कॉटेज तक पहुँच जाते हैं. Dorothy entered and found a bed of dried leaves in one corner. Dorothy को वहाँ पे क्या नज़र आता है, ड्राइड लीव्स का, सूखे हुए पत्तों का एक बेड नज़र आता है. जैसे ही कॉटेज में एंटर करती है डॉरथी, कि एक साइड में, एक कॉर्नर पे क्या होता है, बेड होता है ड्राइड लीव्स का. शी ले डाउन एट वंस, तो वो लेट जाती है बिकॉज शी वॉज टायर्ड. एंड विथ टोटो बिसाइड हर सून फेल इन टू अ साउंड स्लीप. साउंड स्लीप में बहुत गहरी नींद में वो सो जाते हैं. टोटो भी उसके साथ में होता है, टोटो भी एक साइड में उसके, बिसाइड हर सून फेल इन टू अ साउंड स्लीप, तो टोटो भी उसके पास ही सो जाता है डॉरथी के. द स्केयर क्रो हु वॉज नेवर टायर्ड. अब स्केयर क्रो तो कभी नहीं थक सकता ना, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ फील ही नहीं कर सकती, उसमें मतलब आर्टिफिशियल बॉडी है, तो जैसे उसको भूख नहीं लगती वैसे उसको नींद भी नहीं आती, वो थकता भी नहीं है. स्टूड अप इन अनदर कॉर्नर, तो वो एक साइड में खड़ा ही रहता है स्केयर क्रो. एंड वेटेड पेशेंटली अंटिल मॉर्निंग केम, और जब तक सुबह होती है
बड़े आराम से पेशेंटली वो वहाँ पे वेट करता है और डोरथी और टोटो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं. Tomorrow we will read section 2. Till then I am giving you some comprehensive questions. You have to write in your rough notebook. After watching the video, you have to write answers. Who was Dorothy's companions? Companions means friends. कि डॉरथी के फ्रेंड्स कौन थे जो उसके साथ जा रहे होते हैं जर्नी पे. Who was Toto? How did Dorothy reach Kansas? कि डॉरथी जो होती है वो कैंसस कैसे पहुंच जाती है. Why did the scarecrow refuse to eat bread? कि स्केयरक्रो ने ब्रेड खाने से मना क्यों कर दिया था. There are 4 questions. You have to attempt in a very neat handwriting in your rough notebook. Just you have to try. Okay? These are very easy. Tomorrow we will read section 2 and do question answers. Okay? Have a nice day. Bye-bye.